Miscellaneous exercise on chapter 6 from question number 16. The question number 16 is, let f be the function defined on AB such that f dash x greater than 0 for all x belongs to AB. Then prove that f is an increasing function of AB. It is defined on AB, means closed interval AB, and f dash x greater than 0 for the open interval AB. Suppose I is represent the open interval AB. I is represent the open interval AB. Let x1 and x2 belongs to I. मतलब इसका मतलब AB के बीच में कोई दो नंबर हैं x1 x2 with x1 is less than x2. It means x2 greater than x1. Okay. By the rule of derivability, by the rule of derivability implies continuity. अगर fx is continuous, fx is continuous in the closed interval, AB और द क्लोज्ड इंटरवल x1 x2. अगर fx कंटिन्यूस है इन दोनों क्लोज्ड इंटरवल में, इट मीन्स ये क्या होगा, डेरिवेबल भी होगा. इट मीन्स जो कंटिन्यूस होता है उसी को हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं. डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल AB. It means x1 x2 by मीन वैल्यू थ्योरम. देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी, f x2 माइनस f x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट C, where C lies between x1 and x2. C lies between x1 and x2. अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं. x2 माइनस x1 f डैश C. ओके, वेयर बताइए C is between x1 and x2. Now we have taken x1 is less than x2. It means x2 minus x1 is greater than 0. Okay, it is greater than 0. And also f dash x, ये भी डिफरेंशिएशन ही ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल. f dash x is greater than 0 for all in I given. ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. It is given. It means f dash c is greater than 0. This is from this equation. This is the equation. fx2 minus fx1 is greater than 0 because this is greater than 0 and this one is also greater than 0. या फिर f x1 is less than f x2. Every pair of this, okay, thus by every pair of points x1 x2 belongs to I and x1 is less than x2. It means fx1 less than fx2. Hence the function here like fx2 greater है fx1 से, it means fx is strictly increasing. increasing
is in I. I means I is x1 and I is belongs to AB. और AB के बीच में हम लोग 2 नंबर लिए थे x1 x2 और उसी से प्रूव कर दिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17. Show that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed a sphere of radius r is 2r by root 3 and also find the maximum volume. The height of cylinder maximum volume कब देगी? जब radius of इसकी sphere की radius कितनी होनी चाहिए? 2r by root 3. Suppose here is a sphere. This is a sphere and the volume cylinder is inscribed in it. This is a cylinder. Okay. And the radius of the cylinder is x and height of the cylinder is y. तो ये सेंटर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये y/2 और ये रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके. तो लेट x be the radius of cylinder and y is the height. Okay. And capital R be the radius of sphere. Okay. Now we will use the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem in this triangle, x square plus y by 2 whole square equal to, in the figure this is using Pythagoras theorem, r square equal to x square plus y/2 whole square. यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x square plus y/2 whole square equal to r square and x square equal to r square minus y by 2 whole square or the y square by 4. Okay. Now V is the volume. V is the volume is pi x square y. Volume of cylinder is pi r square y means volume, यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही मैक्सिमम बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लगाएंगे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू वाई, और इसमें पाई कॉमन है, इसको लिख देंगे आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 4. ओके. नाउ डिफरेंशिएट. पाई कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 4. ओके. तो नाउ डबल डिफरेंशिएशन d2v ओवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई इट इज रूट आर स्क्वायर को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 6y/4. इट मीन्स 3y माइनस 3/2 पाई वाई. ओके. अब पुट करेंगे हम लोग dv ओवर dy इक्वल टू 0. dv ओवर dy इक्वल टू 0. इट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0. वी गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर बाई 4 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर बाई 3, y इक्वल टू 2/√3 y. सॉरी, आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 3 एंड इट इज इक्वल टू द 2r बाई √3. y इक्वल टू 2r बाई √3. अब पता चल गया हमको y कितना है 2r बाई √3, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस. ओके. नाउ अब देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम है, तो नाउ पुट इन दिस इट इज इक्वल टू द -3 पाई बाई 2 इंटू वाई. इट मीन्स 2r बाई √3. नेगेटिव है, क्लियर दिख रहा है, इट इज ए नेगेटिव. नेगेटिव मतलब ये पॉइंट क्या है मैक्सिमम. मैक्सिमम तो लिखेंगे y इक्वल टू
2r/√3 and volume is maximum at y equal to 2r/√3. Okay, तो पुटिंग y equal to 2r/√3 इन इक्वेशन, तब वॉल्यूम हमको क्या निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या था, पाई x² की जगह हम लोग पाई r², क्या था x² को हम लोग यूज किए थे r² माइनस y/2 होल स्क्वायर, x/2 माइनस y/2 होल स्क्वायर, दिस इज द x² था और ये यहाँ पर y था, r² एंड y²/4 यानी 4r²/3 इंटू 4 इंटू y यानी 2r/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पाई 3 - 1 2r/3 इंटू 2r/√3, तो वी गेट 4πr³/3√3. This is the volume, maximum volume of the cylinder which is inscribed in a sphere. Okay. 18. Show that the height of the cylinder is greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone. Greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h³ tan square alpha. Show the figure of this question. This is a cone. Okay, this is a cone. मान लेते हैं cone की डायमेंशन a, b, c और this is the height of the cone. Suppose height of the cone is h. Now a cylinder fit inside it. Okay, the height of the cylinder is y and radius is x और इसकी रेडियस है स्मॉल r, तो लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू r, height of cone h, radius of cylinder x and height of cylinder y. क्योंकि हमको सिलेंडर का ही वॉल्यूम दिखाना है, मैक्सिमम होगा 4/27 पाई h³, यही हमको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इसको हम लोग नाम दे देंगे, ये पॉइंट P, Q और ये R। तो लिखेंगे इन सिमिलर triangles APQ and triangle ARB, तो हम लोग क्या लेंगे, AP/AR, दोनों की साइड्स का रेशियो लेंगे, AP/AR इक्वल टू PQ/RB, यानी इसकी हाइट बाई पूरा हाइट, ये रेडियस बाई दिस रेडियस। P ये हो गया, AP कितना हो जाएगा, AP h माइनस y, ये h है पूरी और ये y है, तो ये हो गई h माइनस y अपॉन AR। AR तो पता है पूरी h है, इक्वल टू PQ इज द रेडियस इज x अपॉन R। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, R h माइनस y इक्वल टू एच एक्स। हमको यहाँ से y निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर एच माइनस आर वाई इक्वल टू एच एक्स। आर वाई इधर ले जाएंगे तो आर एच माइनस एच एक्स इक्वल टू आर वाई। इसको इधर ले आए, इसको इधर, तो y इक्वल टू एच कॉमन है
r minus x upon r. H equal to h r minus x upon r. Now the volume of cylinder. Now the volume of cylinder. Equal to pi x square y. पाई एक्स स्क्वायर और y की जगह हम लोग रखेंगे h अपॉन आर, आर माइनस एक्स. इसको हम लोग कह सकते हैं पाई h अपॉन आर, x का मल्टीप्लाई कर दें आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं dv ओवर dx. ये हो जाएगा 2rx माइनस 3x स्क्वायर और जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पाई h अपॉन आर 2r माइनस 6x. ओके, 2r माइनस 6x. नाउ पुट dv over dx equal to 0. Then we get 2rx minus 3x square equal to 0. Okay, तो 3x square equal to 2rx. x से x कैंसिल क्या हो गया, x equal to 2r by 3 and y equal to y हमको क्या है h upon r, r minus x. Put the value of x. It is 3r minus 2r, r by 3, h upon r into r by 3, cancel h by 3. यानी height of the cone is, height of the cylinder is h by 3. Okay, now for the maximum volume of cylinder, maximum volume of cylinder, तो क्या हो जाएगा पाई एच अपॉन आर. वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए. यहाँ पर 2rx माइनस 3 नहीं, ये वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई एच अपॉन आर, आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आर एक्स इज इक्वल टू 2r बाई 3 यानी 4r स्क्वायर बाई 9 and the cube is 8r cube by 27. अब इसको पूरा सॉल्व करके लाइए, कॉमन निकालिए, एलसीएम लेके 4r क्यूब ये माइनस होगा तो आपका आएगा टोटल फाइनल 4 by 27 पाई h r स्क्वायर. हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये r कैंसिल होगा, ये आएगा. ठीक है, प्रोवाइड बाय. अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए अल्फा एंगल तभी यूज ही नहीं किए. द वर्टिकल एंगल इज अल्फा इज गिवन हियर. द वर्टिकल एंगल इज अल्फा इज गिवन हियर. देन tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर बाई बेस कौन सा ले लेंगे, अल्फा इक्वल टू r बाई h, रेडियस डिवाइडेड बाई हाइट. दिस इज द r बाई h. तो r को हम लोग लिख सकते हैं h tan अल्फा, r इक्वल टू h tan अल्फा. इसी को हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम में. तो यहाँ पर हो जाएगा 4/27 पाई h, r की जगह h tan अल्फा. तो ये हो जाएगा 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी tan अल्फा h क्यूब या फिर h क्यूब tan अल्फा. h r स्क्वायर है ना, तो इट इज हियर h स्क्वायर, सॉरी तो tan स्क्वायर अल्फा h क्यूब, या फिर इसको लिख देते हैं 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ cylinder, maximum volume of the cylinder.